students. Now we are discussing today is coordination in plants. We all know that animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body as we discussed earlier. But plants don't have a nervous system or muscles. Then how do they respond to the stimuli? When we touch the leaves of a chui mui, let me take the example. We have a diagram or a photograph of chui mui. It is touch me not plant. When we touch these the leaves of this plant, the leaves are droop and fold up. So how it be possible without muscle or nervous tissue? Now we discuss this one in a detail. Now, after we study that point, there are two types of movement in plant without the help of nervous tissue or a muscle tissue. There are two types of main movement seen in plant body: growth dependent movement and growth independent movement. Growth related movement is called the tropic movement or a tropism, whereas growth independent movement is called nestism or nestic movement. These two words are not seen in your textbook. Growth dependent movement, it means tropic movement. When seed develops into seedlings after germination, the roots goes down and stem comes up into the air. जब हम कोई सीड है जमीन के अंदर सॉ करते हैं, सॉइल के अंदर सॉ करते हैं, तो होता क्या है कि आफ्टर 2 और 3 डेज उसमें जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के वक्त उसमें से दो 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 साइड से जर्मिनेशन होता है. उसमें से एक रूट डेवलप होता है और दूसरे में से एरियल पार्ट्स डेवलप होता है. एरियल पार्ट्स जमीन के ऊपर आते हैं, रूट्स है वो नीचे जमीन के नीचे जाते हैं. इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट is caused by growth. If it is prevented from growing, it will not show any movement. अगर हम उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं या फिर उसको बरीड कर देते हैं, अंदर सॉइल के अंदर ही बरीड कर देते हैं, ये इसको एयर ना मिले, वाटर ना मिले, या तो उसको बाहर निकलने की जगह ना मिले, तो वो ऐसी मूवमेंट शो नहीं कर सकते. Now growth independent movement, it is called the nestic movement. These two words are not seen in your textbook. When we touch the leaves of mimosa, जो हमने अभी बात की, it is called touch me not plant. It is the mimosa family plant है. They begin to fold up and droop. This movement is very quickly इन रिस्पॉन्स टू टच. हम जैसे ही उसको टच करते हैं, उसकी मूवमेंट है वो तुरंत होती है, लेकिन उसमें तो कोई मसल टिश्यू या तो नर्वस टिश्यू तो है नहीं, फिर भी ये होता है. दिस इज द नेस्टिक मूवमेंट. इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ग्रोथ. इट्स अ वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच. देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन द मूवमेंट. So how this is possible? The response of touch sensitive plant. The sensitive plant mimosa plant shows visible movement against touch as the plant lacks muscles and nervous tissue. If we touch the leaves of such plant mimosa or chui moi or touch me not, whatever you say, its leaves immediately fold up and droop. In such plant cells change the shape by changing the amount of water within them. When we touch the leaves of the plant,
the pulviness of leaves have some amount of water, and hence this turgid part, uh, the turgid part broaden the leaflets. But when we touch the plant, leaves of the plant, the water in the pulvinous is move around move from there to the other cells. It is result in a change of shape. So in such plants, plant cells change the shape by changing the amount of water within them. Result result leaves are swelling or shrinking. Hence, the fold up and droop. तो ये फिगर या तो फोटोग्राफ हमने यहाँ पे पेज नंबर 120 पे है टेक्स्ट बुक में, तो ये यहाँ पे दिखाई देता है. नाउ कोऑर्डिनेशन इन प्लांट विद कंपेयर टू डेट इन एनिमल. अभी एनिमल की कंपैरिजन में प्लांट में जो रिस्पॉन्स है ना वो स्लोअर है, वो हम जानते हैं. For controlling and coordinating activities of the body, animals have muscles and nervous tissue. We know that. Whereas plants have not. In animals, the muscle cells have a specialized protein, so they are able in movement. They are able in movement by changing shape of the cell due to the contraction and relaxation of the cell. तो होता ये है कि एनिमल मसल सेल में एक प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोला जाता है. ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, जब उसको जब स्टिमुलस मिलती है, सेंसेशन मिलता है, तो वो उसी प्रोटीन उसका शेप चेंज करती है, या तो कॉन्ट्रैक्ट करके या तो रिलैक्स करके सेल का शेप है वो चेंज करते हैं. और ये प्रोटीन इसकी मूवमेंट से हम मसल की मूवमेंट कर सकते हैं. बट इन प्लांट दे डू नॉट possess एनी मस्कुलर टिश्यू और a specialized protein. The cell of plant change their shape by changing the amount of water. एंड प्लांट में सिर्फ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर जब चेंज होते हैं तभी जो सेल है उसका शेप चेंज होता है, श्रिंक होता है या तो स्वेल होता है. द स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ द सेल्स डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीज और डिक्रीज. अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर इंक्रीज होता है, वाटर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो स्वेल होता है सेल, और क्वांटिटी डिक्रीज होती है वाटर की तो श्रिंकेज होता है. तो इसी तरह से उसकी मूवमेंट होती है. Plants have no tissue to pass any message from one tissue to another tissue. Yet the plant cell passes electrical and chemical signals and hence convey this information from one cell to another. ये सिर्फ केमिकल से ही हो सकता है. उसके अंदर के जो केमिकल्स है वो ये जो रिस्पॉन्स है वो उसी हिसाब से देता है. वो भी वाटर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा के या तो घटा के, तो ये केमिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होता है. और वो सिर्फ हार्मोन्स कर सकते हैं. वो हार्मोन्स इज द केमिकल मैसेंजर्स. नाउ ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म इन प्लांट. तो ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म, इफ द मूवमेंट इन अ प्लांट ऑर्गन्स इज इंड्यूस्ड बाय an external and directional stimulus, then it is called the tropism or tropic movement. तो ट्रॉपिक मूवमेंट में होता ये है कि जब भी स्टिम्यूलस आती है तो वो कौन सी डायरेक्शन से आती है उसी हिसाब से या तो उनके डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, जिसको ट्रॉपिज्म या तो ट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाता है. अगर ये स्टिम्युलस की डायरेक्शन में हुई तो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट या तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुई मूवमेंट तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म उसको बोला जाता है.
The growth of plant part is in or opposite direction of stimulus. Hence, it is called the positive and negative tropism respectively. Now, तो light, gravitational force, water, chemical and physical touch are the common factors that induce stimuli. तो प्लांट के लिए जो स्टिम्युलाई है वो कुछ फैक्टर्स है, लाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, वाटर, केमिकल एंड फिजिकल टच. तो ये प्लांट के लिए ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये सब. जैसे कि हम स्मेल कर सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं, हम प्रेशर, टेम्परेचर है वो हमको पता चलता है. तो ये हमारे लिए ये फैक्टर्स है स्टिम्युलाई. यहाँ पे कुल 5 मूवमेंट है जिसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म तो उसकी स्टिम्युलस है लाइट. तो लाइट इज डिपेंडेड टू कॉज फोटोट्रॉपिज्म. सॉरी, लाइट इज रिस्पॉन्सिबल इन रिस्पॉन्स टू लाइट, सनलाइट. खास करके इसमें सनलाइट का रोल होता है. तो जो स्टेम होता है वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो होता है, मतलब कि एरियल पार्ट स्टेम, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म जिसको बोला जाता है, क्योंकि वो सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो होता है. और रूट्स है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, जो सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में उसका ग्रोथ होता है. जियोट्रॉपिज्म the stimulus is gravity. तो in response to gravity, stem negative geotropism, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है और स्टेम ऊपर की तरफ जाता है, इसीलिए वो नेगेटिव है. और रूट्स है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है, क्योंकि रूट्स है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही ग्रो होता है. नाउ हाइड्रोट्रोपिज्म. तो हाइड्रोट्रोपिज्म, द स्टिम्युलस इज वाटर. इट इज इन रिस्पॉन्स टू वाटर. स्टेम नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, क्योंकि वाटर तो जमीन के नीचे से आता है और रूट से वो वाटर की डायरेक्शन में ग्रो होते हैं, इसीलिए वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, वेर एज स्टेम इज नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म. केमोट्रोपिज्म, इट इज ड्यू टू केमिकल. इट इज रिस्पॉन्स टू केमिकल. तो एलोंगेशन ऑफ पोलन ट्यूब in the direction of ovule. Whenever fertilization occurs, the pollen tube is developed, and this pollen tube is growth. The growth of pollen tube is towards the ovule. So who is responsible? The elongation of pollen tube. So it is caused due to the chemicals. तो केमिकली उसको ओव्यूल तक ले जाते हैं. नाउ थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म, द स्टिम्युलस इज टच. इन रिस्पॉन्स टू टच, तो द टेंड्रिल्स कॉइल स्पाइरली अलोंग द सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट. तो कई सारे ऐसे प्लांट्स है जिसका स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक स्टेम होता है, तो उसको क्लाइंबर्स बोला जाता है. तो क्लाइंबर्स ऐसे क्लाइंब नहीं करती, उसके जो स्टेम है उसके ऊपर से एक स्पाइरली एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो टच सेंसिटिव होता है. जो उसके जो बेस होता है उसके ऊपर या तो कोई दीवार है या तो कोई पेड़ है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर वो चिपक जाता है. उसके आसपास है वो अपनी वो कॉइल हो जाता है या तो चिपक जाता है, और जो प्लांट है वो ऊपर चढ़ता है. तो ये थिग्मोट्रोपिज्म है. नाउ एक्टिविटी 7.2. तो एक्टिविटी 7.2, तो इसके लिए जो ये 7.2 एक्टिविटी है, तो 7.2 के लिए ये यहाँ पे 2 फिगर्स है. तो ये 7.2 एक्टिविटी है. तो यहाँ पे एक बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, वो 5 साइड से कवर्ड है, लेकिन एक साइड उसकी ओपन है. हमको ये देखने के लिए ये ओपन रखा है, लेकिन ये 5 साइड से कवर्ड है, लेकिन एक साइड ही ओपन है. यहाँ पे एक फ्लास्क रखा गया, उसमें एक रूट वाला एक प्लांट यहाँ पे रखा गया है फ्लास्क में.
तो थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे तो ये प्लांट है वो लाइट की तरफ उसको मुड़ेगा, लाइट की तरफ वो झुक जाएगा और लाइट की तरफ ही जाने का वो ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक लीव्स को फोटोसिंथेसिस करनी है और हर एक लीव्स को प्रॉपर सनलाइट मिले, उसी हिसाब से प्लांट अपने आप को एडजस्ट करता है। तो जिसको बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। तो ये फोटोट्रॉपिज्म की एक्टिविटी है, बराबर। तो अभी यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट है, नीचे रूट्स है ये सब। तो क्या किया गया है, उसको उसको उल्टा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी प्लांट है वो, प्लांट के जो एरियल पार्ट है वो तो ऊपर ही जाएगा और रूट है वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाएंगे। तो ये जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं। इनिशियली एट द बिगिनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट एंड रूट्स टर्न अवे फ्रॉम लाइट। आफ्टर टर्निंग फ्लास्क, after few days, shoot again shows the bending towards the light and roots move away from light. यहाँ पे कुछ आंसर्स दिए गए, ये 3 आंसर्स है। ये यहाँ पे है कि shoot always grow towards light as it positively phototropic and roots is in the opposite of light, it is negative phototropism. ग्रोथ पैटर्न और डिरेक्शन डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल स्टिम्युलस। एनवायरमेंट से स्टिम्युलस कहाँ से आती है उसके ऊपर ग्रोथ पैटर्न है वो डिपेंड करती है। वी कैन conclude that shoot grows in the direction of light, it means shoot shows positive phototropism whereas root shows negative phototropism. So we have discussed already. Now हम अपनी बॉडी में जो रिफ्लेक्सिस जो हमारी आती है, मतलब कि हम जो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी में होती है, उसके लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस आर एन एफिशिएंट मीन्स फॉर कोऑर्डिनेशन विथ इट्स ओन लिमिटेशन। उसकी लिमिटेशन भी है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पीड से जाती है। लाइट की स्पीड से जाती है वो हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह। हमने वो रिफ्लेक्स एक्शन में देखा था कि जब एक्शन होती है तो बहुत रैपिड होती है। अ क्विक रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिम्युलाई कैन बी मेड बाय ओनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लिमिटेशन: इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैव several limitations. Electrical impulse will reach only those cells that are connected by nervous tissue. तो नर्वस टिश्यू से जो सेल्स कनेक्टेड है उसी सेल को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पहुंचती है, लेकिन उसके आसपास के सेल को भनक तक नहीं लगती। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं। इट विल नॉट कोऑर्डिनेट with each and every cell which are not connected with nerves in animal body. Nerve cell are unable to create and transmit electric impulses continuously. तो नर्व सेल है वो अनेबल है जो कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो चली जाती है तो रिसेट के लिए उसको टाइम लगता है। द सेल टेक टाइम to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. तो ये उसकी लिमिटेशन है, लेकिन ये लिमिटेशन को भी ओवरकम ये केमिकल से किया जाता है। तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन से ये कमी दूर की जाती है। एंड इन एनिमल बॉडी द केमिकल और हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज बाय सपोर्टिंग नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम और केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय स्पेशल केमिकल कंपाउंड। हॉर्मोन्स जो स्पेशल केमिकल कंपाउंड उसको हार्मोन बोलते हैं, जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे आर केमिकल कोऑर्डिनेट्स एंड डिफ्यूज बाय स्पेसिफिक सेल विच हैव स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेस। हर एक सेल है कभी ना कभी कोई ना कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज करता है, और जो जहाँ पे ये रिलीज होता है वहीं पे केमिकल इफेक्ट आती है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इज स्लोअर but it can potentially reach all the cells of the body.
तो बॉडी के हर एक सेल में जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ पे केमिकल्स की इफेक्ट है वो पहुँच जाती है, जिस पे ये स्पेसिफिक केमिकल्स नहीं प्रोड्यूस होता, वहाँ पे वो इफेक्ट नहीं होती, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं होती। And compared to electrical impulse, it is steady and persistent and effective in both plants and animal। ये प्लांट और एनिमल में ये इफेक्ट, ये जो केमिकल इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही इफेक्ट ये प्लांट एनिमल बॉडी में ये नर्व सेल के साथ, नर्व इम्पल्स के साथ साथ ये काम करती है। नाउ प्लांट हॉर्मोन्स, तो दे हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। तो प्लांट हार्मोन, तो प्लांट में तो हमने जानते हैं कि मसल टिश्यू या तो नर्व्स टिश्यू नहीं होती। देयर प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एक्शंस आर डिफरेंट एट डिस्टेंस प्लेसेस इन द बॉडी। जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन्स, वहाँ पे उसका कोई काम ही नहीं होता, उसकी इफेक्ट दूसरी जगह पे होती है बॉडी के अंदर। नाउ प्लांट हार्मोन्स, जिसको फाइटो हार्मोन्स भी बोला जाता है, तो ग्रोथ प्रमोटिंग ये 3 ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन एब्सिसिक एसिड है, जो इथिलीन, एब्सिसिक एसिड यानी इथिलीन है। ये तुम लोगों की टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो एब्सिसिक एसिड और इथिलीन है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स, ऑक्सिन है तो ये फोटोट्रोपिज्म और के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज सिंथेसाइज एट द रूट एंड शूट टिप्स। तो ये रूट या तो शूट टिप्स पे उसका बनते हैं, और इससे सेल है वो लॉन्गर बन जाते हैं। जो हमने आगे देखा कि प्लांट है वो लाइट की तरफ मुड़ जाता है, तो जिस तरफ मुड़ना होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टेम के अंदर जो सेल है वहाँ पे ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रहता है, और ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस से सेल्स लंबे हो जाते हैं और प्लांट है वो एक तरफ झुक जाता है। नाउ जिब्रेलिन, इट हेल्प्स इन द हॉरिजॉन्टल और गर्थ ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो जैसे जैसे प्लांट ग्रो होता है उसकी जो लंबाई हाइट बढ़ती है, वैसे वैसे उसका स्टेम भी थोड़ा उसकी विड्थ भी बढ़ने लगती है। तो ये ग्रोथ के लिए जिब्रेलिन होता है। नाउ साइटोकाइनिन, it naturally present in higher concentration in areas where rapid cell division occur, as for example fruit and seed। जो फ्रूट और सीड्स ग्रोथ होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर काफ़ी सारा फूड है वो अंदर स्टोर होता है, जो साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। नाउ एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। इट इनहिबिट द प्लांट ग्रोथ, ड्यू टू इट्स इफेक्ट प्लांट और ट्री विल्ड्स द लीव्स। तो जो अपने पत्ते वो गिरा देते हैं, येलो होकर नीचे गिर जाते हैं। और इथिलीन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटिंग ग्रोथ ऑफ फ्रूट बाय रिपनिंग दैम। तो इथिलीन वो फ्रूट रिपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आफ्टर रिपनिंग द फ्रूट द ग्रोथ इज स्टॉप्ड। तो यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ पेज नंबर 122 टेक्स्ट बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू।